Hey everyone, this is Royal Enfield Bullet Electra and with cool custom mods. It belongs to my good buddy Chirag, so let's start. The overall appearance of this motorcycle is quite different and it looks significantly bigger than standard Bullet. Let's start with LEDs. On leg guard we installed two 20 watts yellow LEDs which are very effective in night. Very powerful daymaker LED in main headlamp with nice amber DRLs, and also very powerful bright white LED auxiliary lamps which are very helpful in dark environment. This is a long distance vehicle and Chirag have done many long distance ride, means 1000 km single journey. Inside seat is 80 density foam and it is cut according to riding comfort of him, and it is far more comfortable than stock seat. These are brackets for luggage carriers and side panniers. The front suspension is tuned with ISS shocks which had good rebound and solid comfort on road, and big off-road style mud flap to reduce the droplets comes from ground and in wet tarmac. The rear suspension is not standard and those are RGS shocks. Again longer travel than stock, so comfortable to ride. Nice headlight grille makes this motorcycle look even more old school. Main attraction of this motorcycle to me is this giant ape hanger handlebar. I will ride this bike in a moment when I'll explain more about it. Chirag bhai also put on Acerbix knuckle guard on this bike which looks cool. They are very protective in case of crash, and the mounting brackets are also aftermarket and strong one. I am riding this beastly Royal Enfield and this handlebar feels more relaxed to ride. Big guys like Chirag desperately needs this. Stock handlebar will not gonna work. And Chirag is a long distance rider. His recent long distance ride is Mumbai Kanyakumari. The comfort this motorcycle offers is unparalleled to standard Enfield, but I am very impressed riding this. The exhaust we cut actually to provide more power but having stock exhaust sound. So all filters that restricts motorcycle performance are removed from exhaust, and all filters that restrict the sound we kept in that motorcycle. So that is the smartest move we have done in that motorcycle. This is side by side comparison between my Classic 500 and Chirag Bhai's Electra, but his bike is more purpose built and built with the absolutely top notch perfection. The engine work I won't be able to share with you on social media, but believe me, it is far from standard. I just want to show you the place where we customize this Royal Enfield. ओके, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये जो बाइक है चिराग भाई का, वो उसका सभी काम इसी गैराज में हुआ है। और अभी ये भाई बताएंगे हमें कि इन्होंने इस गाड़ी पे क्या क्या काम किया है। हम लोगों ने पहली बार तो हैंडल मॉडिफाई किया, फिर उसके बाद पीछे RYG का शॉक अब्जर्वर बिठाया, आगे के स्प्रिंग चेंज किए जो RSS कंपनी के थे। दोनों उस आगे स्प्रिंग डालने की वजह से और पीछे शॉकअप डालने की वजह से उसका ग्राउंड क्लियरेंस 2-3 इंच से बढ़ गया, तो राइड कंफर्ट भी अच्छा हो गया राइडिंग के लिए। फिर आगे जो ये गार्ड है अपना, उसके सब फिटिंग्स मिलते नहीं है नेचुरली, तो वो पूरा गैस वेल्डिंग से सब बना के मॉडिफाई करके एकदम प्रॉपर आप देख सकते हो ऐसा प्रॉपर फिटिंग के साथ सब लगाया है। फिर कार्बोरेटर का ऐसा सेटिंग किया है कि वो मोर पावर दे और एफिशिएंसी भी अच्छी हो। फिर हम लोग ने ईडीएम स्पार्क प्लग डाले NG के कंपनी के, जिससे और एफिशिएंसी और पूरा फ्यूल अच्छे से बर्न होता है। ग्राउंड क्लियरेंस ऐसे ही रेस किया जाता है, मतलब फ्रंट एंड भी और रियर एंड में भी अगर आप चेंजेस करेंगे तो फिर ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का ओवरऑल
बढ़ता है और जो गाड़ी है वो आपको बहुत ज़्यादा एफर्टलेस लगती है। मतलब अगर आप गाड़ी चलाओगे तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी आपको ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। प्लस इसमें इन्होंने जो यहाँ पे काम किया है शॉकअप सर का और पीछे के फोर्स का, तो उसी हिसाब से हैंडल भी बनाया है ताकि आपको और फुल बैगर जैसा हैंडल का फील आए। और ये लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए बनाया हुआ हैंडल है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड है और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, एकदम प्रोफेशनली काम किया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमाग यूज़ करके कम से कम एफर्ट्स में गाड़ी को बहुत अच्छा इन्होंने किया है। तो भाई और क्या क्या काम होता है यहाँ पे? एक्चुअली हमारे पास तो सारे सर्विस अवेलेबल है, जितना टू व्हीलर पे हो सकता है वो हम लोग ने ऐसा मैनेज किया कि ये वर्कशॉप में हम लोग सब प्रोवाइड कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि किसी और गैरेज में आपको गैस वेल्डिंग का नहीं मिलेगा, लेकिन कैसा एक स्क्रू वगैरह टूटा तो भागना पड़ता है, फिर काम रह जाता है। तो हम लोग ने यहाँ पे गैस वेल्डिंग से लेके कंप्रेसर वगैरह सब ये किया है। फिर हम लोग कल्याण के अक्रॉस फ्री पिक एंड ड्रॉप देते हैं। फिर एक हम लोग का यूनिक चीज़ ऐसा है कि हम लोग 1 मंथ वारंटी सर्विस देते हैं, पर सर्विस के ऊपर भी। और हम लोग ने जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट छोड़ के जो भी पार्ट डाला है वो अगर 1 मंथ में वो वेयर एंड टेयर होता है तो उसको हम लोग फ्री रिप्लेसमेंट करके देते हैं, चाहे कितना भी MRP हो। ये बहुत बड़ी बात होती है। और फोर व्हीलर का भी काम होता है यहाँ पे। हमने अभी अभी देखा है, आप इनोवा गाड़ी पे काम कर रहे थे, एकदम अच्छा काम किया था उन्होंने फोर व्हीलर का। तो इनका सेटअप देख के ही लगता है कि इट इज नॉट अ नॉर्मल गैराज। इतना सारा इक्विपमेंट्स, इतना सारा मतलब वेल्डिंग और सब पाइप्स, ये नॉर्मली गैराज में नहीं दिखता। नॉर्मली 150-100 सीसी बाइक के ज़्यादा पार्ट दिखते हैं या फिर बुलेट के। और बस इन्होंने 20 साल अब्रॉड में काम किया है। एग्जैक्टली यहाँ पे सऊदी अरेबिया। वाह। तो भाई पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस लेके लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो अगर आप कल्याण से बिलोंग करते हैं, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर और नज़दीक के एरिया में, तो ये गैराज को जरूर चेक करना है। इस चिराग भाई ने यहाँ पे जो कस्टम मोड्स किए हैं वो ऐसे नहीं है कि सीधा परचेस किया ईबे से और लगा लिया। इसमें भी बहुत सारा वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, बहुत कुछ किया है। वो इस गैराज का स्पेशलिटी है, मतलब वो आपको यहाँ पे करके मिलेगा। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इन दोनों के नंबर भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप बस इनको कॉल करना और आपका जो प्रॉब्लम है गाड़ी का वो सॉल्व किया जाएगा।